In the heart of Bengaluru, amidst the vibrant energy of MG Road, lies a space where art meets devotion. I'm taking you today to Chandni, the Divine Gallery. For over 3 decades, this iconic gallery has been more than just a store. It is a sanctuary of craftsmanship, culture, and faith. I'm going to be talking to Sultan Bhai, who started this beautiful gallery. This is not just a gallery, this is where spirituality finds form. So let me start by asking you. You are a Muslim by faith, right? Hmm. And I just got interested to know how come there are Uh, Ganapatis everywhere, and you got into this. the thing is that you use the wrong word, faith. Hmm. I have been born in a Muslim family to Muslim parents. Faith is something that, I mean, not necessarily that comes from which family or where you were born in. Understand? Now I'm basically from Mumbai, and in Mumbai we grew up in a Maharashtrian background. So there, every Ganesha festival time, there would be 10 days festival all around us, and people will all be having big pandals and going for the pujas and for the shows. They would have musical shows and so. So I every 10 days for the entire 10 days I used to be there always. So that had creeped into my system sort of, and my neighbors were all Maharashtrians. So I mean, we never thought that there was something different. And I believe there is only one God up there. Whether we call him Ganesha or whether we call him Venkateshwara or whether we call him Bhagwan or Allah or God, whatever, the power is only one. So So the distinction is only the names. how old were you when you were in Mumbai and you were celebrating I this? was around 7 years from the age of 7. Oh, okay. So do you remember your first meeting with Ganesha? How? In Mumbai, that time we were living in a building which was more like a chawl. You know, there were several houses. Neighbors were about 10, 15 neighbors, and they would be Maharashtrians mostly. So they would have pujas, and we would all go and join the pujas. And my mother also, is responsible for this. She never taught me that this is different and we should not go there and we should not do this. She, on the contrary, always encouraged us. जाओ देखो क्या होता है कैसे होता है प्रसाद मिला तो खाओ ऐसा नहीं कि मत खाना ऐसा कुछ नहीं हुआ Very nice, very nice. And what about your relatives, your family? What was their thought when they got to know about this inclination you have? नहीं उस वक्त तो कोई ऐसा परेशानी नहीं थी मैंने नो प्रॉब्लम एट दैट टाइम after coming to Bangalore, and I mean, fortunately, I would say that I got into this business of handicrafts. When I took over this place from a friend of mine who had been here, who was also in Mumbai before, and who when I came here just for a deco sort of, I wanted to shift to Bangalore. So he said, Sultan, I want to give away this place, and it was a handicraft shop. At that time, it was, this was a hub. Utility building was a hub, and all the time it will be full of tourists. So the shop, the way he had it that time, it was like a tourist shop, catering to people with jewelry and bags and knickknacks sort of. And Or which year was this? this was in mid 90s. So I liked that setup, and I took it over from him. And I did not know ABCD of this business. But the only thing, I being from Mumbai, I thought that heart of Bangalore, MG Road, and a big place. So in Mumbai we had never seen such big places. I said, कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम जगह का पैसा तो बढ़ ही जाएगा. So, and being a businessman, my family was a business family. I took it up, and the what happened was that he had dumped all his dead stock onto me. So it took me 3 years to get rid of that dead stock. But it also became an advantage for me in the sense that I understood what not to buy. Initially I got into my system कि भाई ये नहीं लेना है क्योंकि ये नहीं बिक रहा है. देन मेरा जो बिजनेस माइंड था वो हमेशा यही सोचता था कि किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करूँ. तो वो चीज़ क्या हो जिसमें स्पेशलाइज करूँ. आई वॉज ब्रेकिंग माई हेड. एक ऐसा सुहाना दिन आया जब एक कारीगर मेरे पास आया. वन आर्टिजन केम टू मी. उसने एक गणेशा मुझे दिखाया जो बहुत अनयूजुअल था. बहुत ही अनयूजुअल था. तो जब आप तो अनयूजुअल बोलते हो किस इट तरीके वाज से? मतलब
देखिए भगवान को एक ट्रेडिशनल लुक दिया जाता है, ऑर्थोडॉक्स लुक, आमतौर से मैंने जो देखा है मतलब। तो वो थोड़ा हटके था, मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज़ था, और इट इट वाज़ अ डिफरेंट लुक। तो मैंने उससे पूछा, भैया ये इस तरह का गणेश अगर मैं रखूँ तो लोग मेरी पिटाई कर देंगे। ये कैसे, मतलब भगवान का आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या खिलवाड़ कर रहे हो आप हमारे भगवान से? उसने व्हाट ही सेड एट दैट टाइम, यू नो, स्ट्रक मी लाइक अ लाइटनिंग। ही सेड, नहीं सर, गणेशा का ऐसा है कि द मोर फॉर्म्स यू गिव हिम द मोर पीपल लव इट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गणेशा कलेक्टर्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। यू, ही इज वन गॉड विथ होम यू कैन प्ले। और मुझे उस वक्त लगा कि भाई किसी ने मुझे एकदम से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया है जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। तो उसका नाम द्वारकानाथ था। अब मैंने उससे कहा, द्वारकानाथ, अगर मैं डिज़ाइन करूँ तो तुम बनाओगे मेरे लिए पीसेस? कहा हाँ सर बनाएंगे। और इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे, यू नो, ऐसा कि आई वुड एवरी डे थिंक थिंक फॉर सम टाइम, एंड मुझे आई वुड गेट सम सॉर्ट ऑफ फ्लैश, यू नो, कि समथिंग लाइक दिस शुड बी डन। And I'm no good with my hands. I can't draw, I can't paint. I'm no artist. I would explain to him, and he would make a sketch, and then we would make whatever changes we thought were necessary, and we started making. Now, believe it or not, in 6 months' time, Chandni became the best shop for Ganeshas in Bangalore. इतना फेम हो गया. And incidentally, at that time, there was India Today took out a biannual book on South India. In that book, they had a quiz section. जिसमें एक एक क्वेश्चन था, देयर इज अ शॉप ऑन एमजी रोड फेमस फॉर गणेशास, व्हाट इज द नेम? एंड ऑफ कोर्स आंसर वाज चांदनी. सो इतना इतना फेम मिल गया. एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. as Bharganath had said, there were thousands of Ganesha collectors, and every Ganesha collector became my customer. तो फिर वैसे वो सिलसिला शुरू हो गया, हो गया. तो तो अब कितने साल हो गए? आप देख लीजिए, मिड 90 से आज तक, अब 30 ईयर्स, 30-35. हाँ, अच्छा। देन और ना मैं क्या जानना चाहती थी आपसे कि अ, थोड़ा और डीप जाना चाहूँगी मैं जानने के लिए, क्योंकि अब जब आप बोलते हो कि वो गणेशा डिफरेंट था, आप जो पहली बार आपको किसी ने गिफ्ट किया था, तो गिफ्ट नहीं दिया था, दिखाया था, हाँ कारीगर लेकर आया अच्छा था, हाँ कारीगर आर्टिसन लेकर आया था, हाँ. हाँ, तो हम्म. वो कैसा था दिखने में, मतलब और थोड़ा हमें बताइए वो रंग कैसा था, क्या मतलब देखिए, उसमें क्या ऐसा अलग था? भगवान का हमारे पास रूप ऐसा होता है, एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फॉर्म जैसा होता है ना, कि भाई गणेश जी ऐसे ही होने चाहिए, बैठे होना चाहिए, उनका ट्रंक राइट साइड पे होना चाहिए. मगर ये इसको इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक दिया था उन्होंने. एंड इट वाज लाइक अ चाइल्ड गणेश, एक बाल गणेश जैसा था, और खेल रहा है, मतलब ओह! ऐसा. अच्छा। तो मैंने कहा, भगवान से इस तरह का लुक लोग पसंद नहीं करते आमतौर पर. भगवान को जिस तरह से वो रिस्पेक्ट से देखते हैं, भगवान ऐसे ही होना चाहिए. मेरा लिमिटेड नॉलेज था उस वक्त, तो दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज डिफरेंट. एंड बीइंग अ मुस्लिम, आई वाज स्कैर्ड कि मैं कोई ऐसी चीज़ रखूँ जिससे कोई आके मुझसे कहे कि तुमको मालूम नहीं है हमारे धर्म के बारे में, आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? दैट 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 फियर वाज ऑलवेज देयर इन मी, यू नो. एंड तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि पूछ लिया उससे मैंने. तो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतने सालों में ऐसा कुछ हुआ है जो जहाँ पे आपने फेस किया हो कि कोई यू नो आपका उससे पहले मैं टेल यू समथिंग, या कि मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ में, मतलब इसमें जिस तरह से मैं आया, और जिस तरह से मुझे इसमें अट्रैक्शन हो गया, और मैंने काम करना शुरू किया, और जो फेम और प्यार मिला लोगों का, ये कोई कोइंसिडेंस कुछ ऐसा नहीं था. मैं बम्बई से मतलब बिला बिना मतलब के बैंगलोर आ गया. तो आई डेफिनेटली फील देयर इज सम डिवाइन हैंड इन दिस विच हैज पुल्ड मी हियर एंड सेड, ये तुम्हारा काम है, करो. और आई थॉट आई गॉट दैट फीलिंग ऑल्सो, एंड आई गॉट दैट पुश ऑल्सो. और जब कहीं भी मुझे कुछ भी होता था, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता था, किसी भी तरह से कोई आके मुझे समझा देता. और मेरा लक भी उस वक्त इतना अच्छा था कि जो इनिशियल कस्टमर्स मेरे पास आए, वो इतने नॉलेजेबल थे और इतने अच्छे थे कि दे वुड सिट डाउन एंड एक्सप्लेन टू मी थिंग्स. तो आज जो लोगों को लगता है कि सुल्तान भाई के पास इतना नॉलेज है, उसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, ये उन्हीं लोगों की देन है. उन लोगों ने ही मुझे विरासत में दिया है, मतलब, और वहीं से मुझे मिला है. आई एम एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द जो उन्होंने मेरे पे जो बरसाया है. आई बीन लकी इन दैट सेंस, वेरी लकी. तो जो भी उन लोगों ने आपसे बातें की, ऐसी कोई एक बात जो आपको आज तक याद है, जिस टॉप ऑफ द माइंड? हाँ, एक, अच्छा, ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हो गए, मगर मैं शुरू करूँ. एक क्या हो गया कि मुझे किसी एक लेडी थी, हमारे नरे कस्टमर थी. उसने कहा कि सुल्तान भाई, आप
में कुछ है, कुछ पावर है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिससे मेरा ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा मुझसे कि मेरी मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों भी मैरिड, काफ़ी साल हो गए, उनको बच्चे नहीं हो रहे। आप प्रे करके मुझे गणेशा दीजिए। अब मेरे तो कभी दिमाग में ऐसी बात आई नहीं थी। ठीक, मैंने कहा ठीक है, एक मैंने छोटा सी गणेशा लिया, दो एक्चुअली उनके और प्रे किया मैंने। मैंने कहा भैया देखो, ये लेडी जो है वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, मैं तो अनाड़ी आदमी, मुझे पता नहीं कुछ, मगर कुछ ऐसा कर दो कि ये मूर्ति आपके उनके पास जाए और उनका काम हो जाए। अब होने का ऐसा हो गया कि एक साल 1.5 साल के बाद मैं ऐसे ही दुकान में बैठा हुआ था, ये लेडी आ गई, डांस करते करते आ रही है अंदर, कि जी सुल्तान भाई आपने तो कमाल कर दिया। मैं क्या हो गया? बोले मेरी बेटी को भी और बहू को, दोनों को ट्विंस हो गए। तो मैं तो एकदम अचंभे में आ गया, ये क्या हो गया? मगर हाँ, मुझे उस दिन से लगा कि चलो, ये एक मुझे मतलब रास्ता बताया गया कि ये काम तुम शुरू करो। और उस दिन से मैंने ये शुरू किया कि मेरे पास जो भी फर्स्ट टाइम आता है या जो कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, मैं एक छोटी सी गणेश की हमने मूर्ति बना रखी है, मूर्तियाँ बना रखी है, वो प्रे करके और दे देता हूँ। और ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या इसके पीछे क्या रीज़न है कि उनके काम हो जाते हैं और लोग जो है खुश हो जाते हैं। कि आप ऐसा विश करो कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं आपकी 5 मूर्तियाँ लोगों को, 5 फ्रेंड्स को बाँट दूँगा, इस तरह से मैं आपका प्यार जो है स्प्रेड करूँगा। तो वो चीज़ काफ़ी हिट हो गई है, मतलब लोगों तो को वो उनको वो समझ में आ बिलीव गई है। बात। हुँ, और राइट। काम हो रहे हैं लोगों के, पता नहीं कैसे, उसमें क्या है, क्या रीज़न है, क्या वो मैं जान ही नहीं पाया हूँ। मगर मैं भी खुश हूँ, किसी का काम होता है तो अच्छा ही है, बुरा हाँ, क्या है इसमें? डेफिनिटली। एंड ऐसा कभी हुआ है आपके साथ जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई उतार-चढ़ाव आए हो एंड बहुत सारे। तो तब हाँ। आपको स्ट्रांगली गणेशा बहुत का सारे, मोटिव बहुत सारे। हुँ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने आकर के हमें धमकाया है कि आप मुसलमान हो, आप हमारे भगवान का इंसल्ट कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वैसे नहीं करना चाहिए। और ओ वो हमारे कोई राइवल ही थे जिसने ऐसा किया था। और दे वेंट टू द एक्सटेंट दैट दे पुट, हमारे बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक बैंक है, विजया बैंक। उन्होंने एक 5 रुपए का नोट वहाँ पर जमा करवाया जिस पे लिखा था गणेश चतुर्थी। उस वक़्त चतुर्थी थी, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में। चतुर्थी के दिन यहाँ पर बम ब्लास्ट होगा। अब और दैट वाज़ द डी डे फॉर अस, कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बिज़नेस हमारा जो होता है वो चतुर्थी के दिन ही होता था। तो वी बिकेम फेमस फॉर गणेश चौथ। अब उस दिन ऐसा ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि बिल्डिंग जो है वो खुलेगी नहीं, बंद रहेगी। तो एक नोबडी वाज़ अलाउड टू ओपन, बट आई इंसिस्टेड कि नहीं, मुझे तो मैं तो खोलूँगा, मेरे साथ धंधा है। तो आई वाज़ द ओनली शॉप ओपन इन द एंटायर बिल्डिंग, इन यूटिलिटी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, विथ पुलिस प्रोटेक्शन। और माने ना माने आप कि दैट वाज़ द डे आई डिड माय बिगेस्ट बिज़नेस ऑफ माय एंटायर करियर। सबसे बड़ा बिज़नेस उसी दिन मैंने किया। और वी वर नॉट अलाउड टू क्लोज़ द बाय कस्टमर्स अप टू 9 o'clock, नो, ऑलमोस्ट 10:30 इन द नाइट। So, what about your family, Sultan bhai? Like, are they also into this? जी, मैं बहुत अड़ियल, बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ। मैं मैं किसी की सुनता नहीं। मेरी फैमिली में वैसे लोग हैं जिनको यही बात, मेरा ये काम पसंद नहीं है। माय इवन माय सन एंड माय वाइफ आर आल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, इन द सेंस कि दे डोंट इंटरफियर इन माय, आई डोंट अलाउ देम टू इंटरफियर बेसिकली। मेरा प्रिंसिपल है एक ज़िंदगी का कि मैं कभी किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करता। एंड आई मेक श्योर दैट नोबडी इज अलाउड टू इंटरफियर इन माय लाइफ। मुझे जो करना है मैं करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम तो हुआ ही नहीं कभी। हम्म। कोई को पसंद हो ना पसंद हो, मैंने जो करना है सो करना है। तो आपने अपने घर में भी रखे हुए हैं हाँ, स्टैचू? बिल्कुल रखे हुए हैं, बिल्कुल रखे हुए हैं। हम्म। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए मेरे लाइफ में जो मैं, अगर कोई सुने तो उनको, उनके मानने में नहीं बात आए कि ऐसा भी हो सकता है। एक जब जब मैंने हम क्या करते थे कि हर हर हफ्ते में 10 दिन में एक नया क्रिएशन क्रिएट करते थे गणेशा में। और जितने भी गणेश कलेक्टर्स थे और जो गणेश जी को मानने वाले थे, वो उनका एक रिचुअल बन गया था कि आकर के मुझसे लेके जाना। जैसे भी हम नया बनाए, हम फ़ोन कर दें, भैया रेडी है, आके देखो। और तो एक मेरा कस्टमर था जिसने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था, जो हर महीने में आकर के एक गणेश मुझसे ले जाता था। उसने कब एब्सोल्युटली, मतलब बिल्कुल विदाउट विदाउट फेल, एवरी मंथ ही वुड कम एंड पिक अप अ गणेशा फ्रॉम मी। अब
हर महीने आने वाला आदमी कम से कम 3-4 महीने आया ही नहीं। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? एक दिन शाम को एक एक लड़का आया मेरे पास। कहा, अंकल मैं आई एम द सन ऑफ सो एंड सो। तो मैं बोला, अरे वेयर इज योर डैड? बोला, अंकल अनफॉर्चुनेटली डैड पास्ट अवे एंड व्हाट at the time he was in hospital and he was, I mean, we were sure that he's not going to survive. He called me and said, give me one promise. एक मुझसे प्रॉमिस करो कि every month you will go to Sultan Bai Chandni and pick up a Ganesha till the time you are able to do. So I have given a promise to my dad that every month I'll come and pick up a Ganesha, so I will do it. I mean, ये बात जो मुझे ऐसी छू गई कि मैं तो पूरा मतलब पानी पानी हो गया कि क्या बोल, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कोई आदमी इतना सिंसियर हो और उसका उसका फेथ देखिए उस आदमी का। Definitely, और even उस situation में to take that promise. And what about the community, your community? वहाँ से कोई problems हुए? देखिए ये सब चीज़ें होनी ही होती है ना कि फैनेटिक्स होते हैं लोग। तो अगर पता चलता है कि भाई सुल्तान भाई ये काम कर रहे हैं तो आके हमको बोला कि आप काफिर हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा और आपको हम अपने मस्जिद में अलाउ नहीं करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ये सब बहुत हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। और उसके बाद एक मतलब क्या हो गया, किसी जर्नलिस्ट ने आई वोंट टेक द नेम ऑफ द पेपर ही वाज अटैच्ड टू एक आर्टिकल लिखा। उस वक्त बहुत सारे लोग आते थे, काफ़ी नाम था। तो टीवी के लोग भी, मीडिया के लोग आते थे। तो उसने ऐसा लिखा कि सुल्तान भाई को जो है अपनी कम्युनिटी से ऐसा प्रॉब्लम हुआ और ऐसे लोगों ने आके धमकाया और ऐसे किया। तो उसका काफ़ी असर हुआ था, मतलब वो पढ़ कर के काफ़ी लोग हमारे मुझसे नाराज़ हो गए थे, मेरी कम्युनिटी। हालांकि मेरा इसमें कोई मैंने कुछ कहा ही नहीं था ऐसी बात, उसने अपने मन गढ़ी लिख दिया था। और उसके बाद उसने उससे अप्रोच करवाया और उसने एपोलॉजी भी लिखा और क्या क्या, हाँ ये गलत मैं सुल्तान भाई ने नहीं कहा, बट हाँ उस दौरान उस पीरियड में लोगों ने काफ़ी मुझे तकलीफ दी। हम्म। और बट अब आप जाते हो मॉस्क, और हाँ वहाँ पे अभी आप जाते हो हाँ हाँ, मैं मुझे कोई फर्क, मैं तो मस्जिद चर्च? जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ। मुझे मुझे फर्क ही नहीं महसूस होता कि क्या अलग है। तो क्या थॉट्स है आपके व्हेन इट कम्स टू फेथ, रिलीजन? लाइक व्हाई डू यू से गॉड इज वन, एंड क्यों फर्क नहीं पड़ता आपको? थोड़ा और इन डेप्थ बताइए। देखिए मैं तो बिल्कुल इन कन्विंस्ड हूँ कि देयर इज ओनली वन पावर अप देयर, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन पावर। हम उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको क्यों फर्क पड़े? जब मैं उसे मुझे अल्लाह कहूँ या गॉड कहूँ या भगवान कहूँ या शिव कहूँ, तो ही आंसर्स टू व्हिचएवर नेम आई कॉल हिम बाय। तो अगर उसे ये जो आदमी है, जो भी पावर है, उसे नहीं फर्क पड़ रहा है कि ये बंदा मुझे किस नाम से बुलाता है, तो लोगों को क्यों फर्क पड़ता है? मेरी समझ के बाहर है ये। दिस बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ आता मेरी बिल्कुल। बट देयर कैन नॉट बी मेनी पावर्स अप देयर, दैट मुझे श्योर है, वरना ऊपर बहुत सारे लफड़े हुए झगड़े हुए होते। ऐसा कुछ होता नहीं। Yeah, there is one God. Even I truly relate to that. And I'd like to conclude with asking you for one message for everybody who's watching today. मैं सीधा साधा बंदा, मैं कौन सा इतना बड़ा आदमी हूँ कि किसी को मैसेज दूँ। हाँ, मेरे एक ही बात मैं जानता हूँ, कोई भी काम आप दिल से करें, फेथ से करें, किसी भी नाम से, किसी भी भगवान को पुकार कर करें, आपका अगर फेथ है तो आपका काम हो जाता है। वो आपको डिनाई नहीं करता। Mhm. what Lovely. is required is your faith। Very true. Have faith and मैं just go ahead. मैंने देखा है, मैंने लोगों के लिए मांगा है कि भाई ये बंदा मेरे पास इस प्रॉब्लम से आया है, भाई इसका काम कर दो ना, और हो ही जाता है काम। तो कुछ तो होगा ना जो मेरी बात सुन रहे हैं, या मेरे पे कोई पता नहीं किस क्यों पे मेरे पे मेहरबान है और मेरी बात सुन लेते हैं। तो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस हीलिंग के लिए सब? हाँ हाँ बिल्कुल। अ, मेरे पे शुरू से ही मुझे ऐसा हुआ है कि somehow आई बीन ब्लेस्ड कि जब मैं बम्बई में भी था और बहुत यंग था मैं, तो मेरी फैमिली में भी कोई की तबीयत कोई नासाज हो, कोई बीमार हो, तो मुझसे आके कहे कि सुल्तान जो है थोड़ा पानी दे दो, तो मैं सिर्फ हाथ ला के पानी दे दूँ, बंदा ठीक हो जाए। तो ये बात फिर स्प्रेड होने लगी, तो मेरे दोस्तों में, मेरे रिलेटिव में, तो लोग आते थे मेरे पास आते। जब ज़्यादा लोग आने लगे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि
कोई चीज़ मटेरियल चीज़ होना चाहिए जो लोगों को कन्विंस करे कि भाई ये दवा है। ऐसे ही पानी दूँ तो जो मुझे नहीं जानता उसको वो कन्विंस नहीं हो पाएगा। तो मैंने होम्योपैथी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और फिर यहाँ आकर के मुझे एक ऐसी ऐसी भगवान की ऐसी लेडी मिल गई, मैं कहूँ कि वो तो बिल्कुल फरिश्ता थी। लक्ष्मी नाम था मैडम का और शी वॉज अ होम्योपैथ एंड शी वॉज फॉलोइंग शिवानंद स्वामी रेमेडीज। तो उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि सुल्तान भाई आप ये करो एंड आई एम ब्लेसिंग यू, आपको सक्सेस मिलेगा। तो मैंने फिर दवा देना शुरू की जब बैंगलोर आकर के। बम्बई में ये काम नहीं करता था मैं। बैंगलोर आकर मैंने फिर शुरू किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लोगों से समझ करके। और आज ऐसा हो गया है कि हैंडीक्राफ्ट की दुकान शोरूम रखा है मैंने, मगर मेरे पास आइटम से ज़्यादा लोग दवाई लेने के लिए आते हैं। हाँ, और ये काम में कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है, मैं पैसे नहीं लेता। जो भी करता हूँ आई मीन जस्ट सेवा ही कर रहा हूँ। That's lovely, and I really want to thank you for your time and sharing so openly with all of us. I'm sure it's going to द inspire many of us. द Thank you प्लेजर so हैज़ बीन much. माइन। Thank you. थैंक यू।